बनना चाहते हैं? मैं नहीं बनना चाहता, एक चीज है, मैं नहीं बनूंगा, मैं इस्तीफा दे। बराह रास्त आप मनाजिर देख रहे हैं। समात के सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समात जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में बेंच केस की समात कर रहा है। Please don't keep telling us. Please don't interrupt. Have some courtesy with, otherwise we will never make any. Please, can you wait? Yes, sir. How many times will you say please? Okay. Right. Please, if my but she just informed me that she was the person, the judge, probably in the Peshawar High Court. Yes. So it's not appropriate to discuss that matter. Okay. So please don't discuss your personal matter. If you're interested in missing persons, we'll certainly hear it. Thank you. Okay. So Thank now you. can we hear someone else? Okay. Thank you, my lord. Ji, thank you. Ji, Mr. Shoaib Shaheen. माय लॉर्ड, एक तो गुजारिश ये है कि मेरा सिविल मिसलेनियस अपील लगी हुई है 161, ये होना चाहिए था, ये मेन पिटीशन नंबर्ड होनी चाहिए थी। ऑब्जेक्शन लगा दिया रजिस्ट्रार जी, इस वक्त ऑफिस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट है ये, व्हिच इज चले ठीक है, दिस मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हम मुस्तरद करते हैं जी, ठीक है ऑफिस ऑब्जेक्शंस। माय लॉर्ड, इसीलिए एक्चुअली वो द मैटर इन माय एब्सेंस सम थिंग्स हैपेंड, so I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing these cases. अब असूलन तो करना चाहिए था कि चेंबर अपील सुनी जाती जी, फिर उस पे ऑर्डर होता, फिर वो लगता, तो हमने वक्त बचाया और आपका केस फौरन लगा दिया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इससे इतराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं तो ग्रेटफुल हूँ, मैं तो ग्रेटफुल हूँ। अब आप अपना केस बताइए जी। मेरा केस माय लॉर्ड ये है, एक सेकंड आप नंबर बताइए। ये नील जी, वो नंबर नहीं लगाया। ठीक है, वी विल ऑर्डर इट टू बी नंबर्ड, अगर आप हम वी विल अंडरस्टैंड इट माय लॉर्ड जी। ओके जी, so we now seeing the main petition, not the जी अपील जी, ठीक है जी। मेन पिटीशन माय लॉर्ड, मेन पिटीशन में मेरी जो गुजारिशात हैं वो मैं अगर प्रेयर में आ जाऊँ माय लॉर्ड, जो मैं सबमिशन पेश करना चाहता हूँ, तो हमारा ये है बेसिकली जो मिसिंग पर्सन्स और abuse of authority. One second at a time. My lord. So this was filed by Mr. Ehtesham Hassan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. ये पैराग्राफ 8 में बताइए, पैराग्राफ 8 पढ़िए, पेज 4 पे। My lord. That the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister? When was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. अब डेट चुके, इसमें लिखी नहीं हुई फैक्ट है, मैं I cannot say anything. Why is this relevant? Anyways, okay. Now, what is the concerns? My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in my lord. So, what do you want us to do? जी, मेरा प्रेयर सर। आपकी प्रेयर जो है पेज 32 पे, पेज 32 के ऊपर है। My lord, it is most respectful pray that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry
on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी कौन सा है जरा बताइए. ये सर ये नोटिफिकेशन है, my lord, before your lordship's file on page 131. 131. My lord. जी. Read it please. My lord. Whereas on expiry of period allowed to the When commission, is this notification dated? ये है सर 1 March 2011. This was the first notification पर नहीं सर, इससे पहले एक और था, उसके बाद ये आया, फिर आगे आज तक अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है. 1 second. So this is which government notification? ये फेडरल गवर्नमेंट. Who was in government then? ये 2011 में पीपल्स पार्टी का जमाना था. 2008 से लेकर 2013 तक दी देन प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबली यूसुफ रजा गिलानी साहब, और उसके बाद परवेज क्या नाम था, राजा परवेज अशरफ साहब. तो ये उस जमाने में हुआ. So you don't want this, you want this notification struck down? आई डोंट वांट, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वो काम जो इनकी जिम्मेदारियां थी वो एडिक्वेटली नहीं कर पा रहे, ना कर सकते हैं, और इन्फोर्समेंट भी सच, क्योंकि ये 2011 से लेकर आज 2023 में बैठे हैं. सो फार एज टिल टुडे उनकी रिपोर्ट के बकौल, वो मैंने नोटिफिकेशन भी इसमें लगा दिया है, जो रिपोर्ट है उनकी, कुछ लोगों के ऑर्डर्स इन्होंने किए हैं, बट सो फार एज उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से ज्यादा अफराद वो हैं जो मिसिंग पर्संस में लोग अभी तक हैं जिसके बारे में कुछ नहीं पता. और जो डिस्पोजल किए हैं, रिपोर्ट में कहा है कि कितने रिकवर हुए हैं. जी वो रिपोर्ट मैंने रिप्रोड्यूस की है. तो बता रहे हैं, ये भी बताइए ना कि जी मैं उसी पे नहीं, उसमें लफ्ज रिकवर नहीं लिखा, लेकिन जो रिपोर्ट है मुलाजा फरमाए पेज नंबर 10 पे मिलो. पेज 10 पे कैसे? जी मैं रिप्रोड्यूस किए, मतलब अच्छा रिप्रोड्यूस. ये तो 2023 की रिपोर्ट है. जी सर 2023 की जो हमारे पास अवेलेबल थी. ऑन नहीं मजीद तो वो खुद बता सकते हैं. तो ये तो जो नोटिफिकेशन है माय लॉर्ड, ये तो आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी. जी सर. जिसके वजीर थे एतजाज हसन साहब खुद. शायद उस जमाने में वो नहीं थे. शायद वह तो ना करें ना. आप पिटिशनर बिफोर अस, आपको पता होना चाहिए बातें ना. माय लॉर्ड, आपने कहा आई एम अ फेडरल मिनिस्टर, so he's in the people's party, isn't he not? जी स्टिल ही इज द पीपल्स पार्टी. So ये अपनी हुकूमत की नोटिफिकेशन को मुस्तरद करना चाहते हैं. अगर गलत थी तो माय लॉर्ड भाई हम आपसे पूछ रहे जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर. सर अब आप बता दें हम करें क्या इसके अलावा. ये आप कहते हैं ये इसी की तो कम से कम ये तो नोटिफिकेशन अच्छी बात है कि कमीशन इंक्वायरी तश्कील दी गई. आप चाहते हैं इसको मुस्तरद कर दें? नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 13 साल काम किया है इन्होंने, और जो मैं रिपोर्ट जो आपको सामने में पढ़ रहा था मैं पढ़ दूं, फिर सर मैं गुजारिशात पेश करता हूँ. नहीं, इसमें आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट दी फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन पैराग्राफ 5 ऑफ द ग्राउंड, वो बताइए ना. वो आप कितने सारे यही मैं गुजारिश करना चाहूँ. पैराग्राफ कौन सा है जिसमें जो आप कमीशन बनाना चाहते हैं? जी सर. तो सर ये प्रेयर के अंदर जो है ना इनका क्लॉज 4 है, रोमन, डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन द पैराग्राफ F ऑफ द ग्राउंड. तो कौन सा कमीशन भाई? ये कमीशन ऑलरेडी है, यू वांट टू रिप्लेस द कमीशन. बताइए कौन सा? किस पेज पे? वो बहुत सारे F हैं और वेरी डिफिकल्ट टू रीड. किसमें लिखा आपने? ये कौन सा फिर कमीशन बनाए वो बताए. पेज 30 पे है. आप चाहते हैं सर वो प्रपोज कमीशन का मैंने दिया है. ऑनरेबल जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. जी सर. प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार. माय लॉर्ड, ये तो लिखा है. ये पेज 20 29 जी. माय लॉर्ड, इसमें पैरा जे से मैं अगर रेलिवेंट पढ़ना चाहूंगा मैंने. To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of all persons from enforced disappearance. These persons who have luckily returned
and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rasheed, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may Are therefore you saying that these people are... They were abducted, kidnapped, after some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before you. No, Veena, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. Or you have certain other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person? Unless that person is a underprivileged person, that's a different thing. But if you are saying is Mr. Sheikh Rasheed one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court, is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. देखिए, एक सेकेंड. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rasheed, मैं tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you, देखिए, there are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party, then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot... Has Mr. Sheikh Rasheed ever been a minister? Right. How many times? Sath-8 martaba, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rasheed cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Ehsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib then? The next name. He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases... Before the house? Some TV station that I was kept somewhere, I went somewhere, and thereafter, पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ, one by one चलते हैं. So then he's also political activist. Chale. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. He belonged to the PTI. Then अब now change. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी अब change क्या मतलब? किस पार्टी में आप? Left the PTI, I think शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में या but TV हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? No, my lord. हम ये कहते हैं. नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना. तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए. ये कौन है? उस्मान डार साहब. उस्मान डार भी, my lord, he was also a political activist belonging to PTI. हाँ? PTI Then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI, but not
तो हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? नो रीजन मतलब हम ये नहीं कहते, हमारी जो गुजारिश है सीनियर काउंसिल। सर मैं अर्ज करूंगा ना सर। अच्छा अगला नाम ही कर लें, आजम खान कौन है? आजम खान ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, ही वाज abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ। आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम आपको इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर, अगर नहीं आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है। अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को My lord points out कि आपने और भी नाम लिखे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम दिए, ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है, मिसिंग पर्संस, बलोच फैमिली। मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर। तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम ये लोग मिसिंग हैं अभी? नहीं, अब पेश कर दिए गए। तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई? नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपीयर कराया गया। एक सेकंड ठहरिए ना, स्टेट एजेंसी या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोगों पे प्रेशर है, स्टेट एजेंसीज का प्रेशर है और वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को, ये लोग जिनके नाम आपने लिए, शोएब साहब ये जो आपने जिन लोगों के नाम लिए ये तो असर रसूख वाले लोग हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है और वकील शोएब शाहीन रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना है कि एतराज़ात को खारिज करके दरख्वास्त से सुन रहे हैं, ये अवामी मफाद का मामला है। और इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा सरबराही कर रहे हैं बेंच की, उनकी जानिब से इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के रिमार्क्स दिए गए और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। शोएब शाहीन रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से दलाइल जारी रखे गए हैं। शोएब शाहीन इस वक्त एतजाज एहसन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आप तो एतजाज एहसन के वकील नहीं हैं। ये पूछा गया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से। इस मौके पर शोएब शाहीन ने कहा कि लतीफ़ खोसा का बेटा गिरफ्तार है तो मुझे वकालतनामा दिया गया है और मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। शोएब शाहीन की जानिब से कहा गया कि हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए गए हैं और उन एतराज़ात के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ये वो तमाम तर एतराज़ात अदालत के सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एतराज़ात को खारिज करके दरख्वास्त से सुन रहे हैं क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला है और अवामी मफाद में ये दरख्वास्त सुनी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ, ये तमाम तर चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इस हवाले से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि मैंने वापस आते ही ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं क्योंकि ये एक अवामी मफाद का मामला है। शोएब शाहीन के शेख रशीद, फ़र्रुख हबीब, सदाकत अब्बासी और दीगर के हवाले से दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से सवाल किया कि आप उनके केस कैसे लड़ रहे हैं, उनके नाम आप किस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। इस मौके पर शोएब शाहीन ने शेख रशीद, फ़र्रुख हबीब, सदाकत अब्बासी और आज़म खान से मुतालिक दलाइल दिए, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया, इस्तफसार किया गया कि कल को इनमें से कोई भी शख्स आकर ये कहता है कि शोएब शाहीन ने हमारा नाम यहाँ पर क्यों लिया था। ये इस वक्त जो है समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए और अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, आप हमें पीछे ले जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसे पढ़ ले।
सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत जारी है, जो कि आप बराह रास्त देख रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम समझते थे मिसिंग पर्सनस का मसला अहम है, लिहाजा ये केस लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म क्या दे सकती है? कल को आप ही हम पर तनकीद करेंगे कि कानून साजी का हुक्म दिया है। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, आप हमें पीछे ले जाना चाहते हैं। इस मौके पर शुएब शाहीन की जानिब से दलाइल देने का सिलसिला जारी है। रोस्टम पर मौजूद हैं और वो दलाइल दे रहे हैं, एतजाज़ एहसन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया शुएब शाहीन से कि आप एतजाज़ एहसन की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि लतीफ़ खोसा का बेटा गिरफ्तार है, लिहाजा वकालतनामा मुझे दिया गया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा शुएब शाहीन से कि आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। अभी आपने एक सियासी जमात की बातें की हैं, सियासी मामलात की तरफ नहीं जाना चाहते, सियासी बातें ना करें, ये मीडिया पर जाकर कर लें। हम यहाँ पर आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से मुकालमा करते हुए ये रिमार्क्स दिए और उनकी जानिब से कहा गया कि ये अहम तरीन मामला है जिसकी हम समाअत कर रहे हैं। ये अवामी मफाद का मामला है। मेरी गैर मौजूदगी में कुछ हुआ, मैं वापस आया तो फौरी तौर पर इस केस को लगाया है और इसकी समाअत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजिस्ता ने कहा कि हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। हम पार्लियामेंट को कानून साजी के अहकामात नहीं दे सकते। कल को फिर हम पर तनकीद की जाएगी कि आपने अहकामात जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान ये तमाम तर रिमार्क्स चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से दिए गए और शुएब शाहीन इस वक्त मौजूद हैं रोस्टम पर। उनकी जानिब से दलाइल देने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर उन्होंने शेख रशीद, फर्रुख हबीब, आजम खान और दीगर के हवाले से बात की तो चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। At the time, जी मिनिस्टर एट दैट टाइम did she tender her resignation? सब्सिक्वेंटली नहीं She tender her resignation? एट दैट टाइम नो। मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूँगा? सर आप बता दीजिए। जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था इस पे। नहीं आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना। दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना चाहिए था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है। हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी। मिनिस्टर फॉर व्हाट थी ये? ह्यूमन राइट्स। तो भाई ये अजीब बात है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया। जी सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये बात जरूर ये सेनेट में गायब हो गया, यही उन्होंने लिखा है। सेनेट में कौन थे? सेनेट के चेयरमैन कौन हैं, थे या हैं? बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं। ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। इलेक्ट किया सेनेटर्स ने जो अक्सरियती पार्टी थी। भाई आप बता देना। सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली। एक सेकंड ठहरिए, शीरीन मज़ाहरी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी। जी जी, चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं, लेकिन इत्तेहादी। पूरी बात सुने जी सर, सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं। संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे। जी, तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं। पार्टी तो मेरी नहीं थी, हम इत्तेहाद था। हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से, तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया। अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरीन मज़ाहरी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है। नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ ना आपने, क्लिपिंग लगाई हुई है, मिसिंग पर्संस बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मज़ाहरी। जी, पेज 58 पे लगा हुआ है। बहुत सीरियस है। जी, मैं वही उसी को पढ़ रहा था। नहीं, अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है। जरा बताइए तरीकेकार क्या है बिल का? आइन में कैसे होता है? नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन
कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया, ये कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद उसके सेनेट बाद से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात नहीं। ये कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए। 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से। ये 70 introduction of Article 70 introduction and passing of bills. जी जी पढ़ लें प्लीज। जी सर। A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the President for assent. If the bill transmitted to the House under Clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the House in which it originated, and if the House pass the bill with those amendments, it shall be presented to the President for assent. And the custodian of the Senate is? The chairman. Chairman belong to your party? मेरी पार्टी नहीं सर, मेरी तो सिर्फ मेरी You voted for him. वोट किया, but not So did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib Saab. जी मैं सर इस वक्त मैं नो आप इस वक्त आपने तहरीरी तौर पे बात लिख दी है ना हमारे सामने जी। आपने सोच समझ के पिटिशन ड्राफ्ट की, माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो एलिगेशन, बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है, तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है। नहीं सर, मैं जो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे आप बताएं ना, हम उसकी तायुन करने। इसमें तो मैंने अभी जो मेरा प्रेयर है शायद इस पे मैंने नहीं डिस्कस किया, मैंने बैकग्राउंड दिया है कि जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब ये कहा जाता है कि कोई भी इन्फोर्स जबरदस्ती कोई किसी को उठाएगा तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए, तो जो वो नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ वो गायब कर दिया गया। दैट वाज देखिए फैक्ट, चलिए हम आपकी बात के साथ चल रहे हैं, ये गायब किसने किया? चेयरमैन सेनेट ने। तो अगर उन्होंने गायब कर दिया तो ये कितना बड़ा, अब क्या आप ही लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आप मुनासिब समझेंगे। देखिए जब गलती अपने घर में भी हो ना, उस पर उंगली रखें। हमने एक नया असूल अपनाया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जब हम गलत करते हैं हम कहेंगे, एक केस में नहीं, मैंने कई केसेस में कहा है कि ये केसेस नहीं लगे, ये हमारी गलती थी, ये हमने गलत किया है। तो अगर आप सिर्फ एक सियासी मकासद के लिए केसेस लाएंगे हमारे पास, वो एक अलग बात है। या फिर पूरी बात कीजिए, हम उनसे पूछ लेते हैं। अब हो सकता है वो कहेंगे जी मुझे तो कभी बिल आया ही नहीं। ये शिव साहब ये रिकॉर्ड से गायब हो गया था या फ्लोर पे आए ही नहीं है डिस्कशन के लिए? इट वाज नॉट अ टेबल। इसमें तो जो श्री मजारी साहिबा है उसकी रिपोर्ट के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर मैंने रिलाई किया है। वो ये कहती है नेशनल असेंबली से पास होके उधर गया, पेज 58 पे उसकी स्टेटमेंट है, लेकिन उसके बाद आगे उसकी जो स्टेटमेंट है, बट इट वाज मिसिंग आफ्टर इट वाज सेंट टू द क्रिमिनल सेनेट। लॉ अमेंडमेंट बिल था, सेक्शन 52B पीपीसी के अंदर ऐड होना था, उसके अंदर कुछ कॉम्पनसेशन और कुछ सजाएं थी अगेंस्ट जो है डिसअपीयरेंसेस के। वो आपका जो है नेशनल असेंबली से पास होके, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। वैसे वहां से गया वो सेनेट से गायब हो गया। That is her statement, और ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है, ये 21 अक्टूबर 2023 के अखबार की है। तो ये मिसिंग पर्सन का केस से मिसिंग बिल का केस बन गया जी, इंक्लूडिंग दैट मिसिंग बिल केस वो भी उसमें शामिल हो गया। और इसमें मैंने बाकी जो रेफरेंसेस दिए हैं वो भी मुलाजा फरमा ले सर। इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स के अलावा उस बिल की कॉपी तो हमें दिखा देना, क्या था मांग रहे थे उसमें आप? सर वो मेरे पास है नहीं, प्रोबेबली इसमें लगी नहीं है। हो सकता है पास हो गया या नहीं पास हुआ। नहीं सर, नहीं हुआ, क्योंकि लॉ में तो वो नहीं आया। अब देखिए पास है नहीं, प्रोबेबली इसमें लगी नहीं है। हो सकता है पास हो गया या नहीं पास हुआ। नहीं सर, नहीं हुआ, क्योंकि लॉ में तो वो नहीं आया। अब देखिए अब हम आपका काम कर रहे हैं, माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया, और ये बिल जो है ना, ये देखिए ये बिल है शोएब साइन साहब, ये बिल जो है ना, ये किधर से आपने प्रिंट आउट किया? ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे
रखा हुआ है, ये रखा हुआ है जी, तो थोड़ी सी कर लिया करे ना, लेकिन जहमत फाइल में चूंकि नहीं था, नहीं, जहमत थोड़ी सी कर लेना। हमारा काम तो नहीं है कि अब ये चीजें निकालने आपके लिए। बात है। अब इसमें माय लॉर्ड ने सही कहा है कि 52 भी ऐड होना था इसमें पाकिस्तान पीनल कोड में, ठीक है, और 512 भी ऐड होना था पाकिस्तान पीनल कोड में, ठीक है, 513 514 ये सेक्शंस ऐड होना थे। 5 years की जो इम्प्रिजमेंट और 5 lakhs कॉम्पनसेशन। ये बिल तो सबमिट किया है शेख रशीद अहमद ने, आपने कहा शाहीन मजारी ने किया है, इस पे तो लिखा है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद। प्रोबेबली इन्होंने, लेकिन जो ये हमने हमारे सामने जो प्रिंट आउट हुआ है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, इसमें तो नाम आ रहा है मिनिस्टर का, आ रहा है शेख रशीद अहमद जी। तो अब कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं सर, ये तो नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तो शेख रशीद अहमद हैं। जी सर, लेकिन नहीं, आपने देखा ये जी सर, अभी मुझे मेरे लड़के ने ला करके दिया है, तो ये फाइल में चूंकि था नहीं, मुझे रात ही फाइल मिली है, मैंने भी रिपोर्ट देखा। के मुताबिक भी वो कहती हैं वी हैड प्रीपेड। हाँ, लफ्ज, हाँ, आई का लफ्ज नहीं लिखा, वी का लफ्ज लिखा। श्री मजारी साहबा की स्टेटमेंट। एक और प्रिंट आउट दें उसके, 2 और। ये मेरे पास एक कॉपी है, नहीं, हमने ले लिया है, खुद ही ले लिया प्रिंट आउट। नहीं है ये प्रिंट आउट लिया जी, आप मेरे तक आप देखें फिर। आप देकर मुझे दे देंगे, मुझे मिल जाएगा। बात बताना चाहते हैं आप हमें? जी सर, इसमें मेरी जो गुजारिश थी कि ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है, और नंबर मिसिंग है। मेरा नंबर नहीं सर, अब आ गया है पेज 2, लेकिन उसकी हालत तो बहुत चेंज थी और ही कुड नॉट इवन स्पीक, और कई महीने। ये देखें, ये आप जाती तौर पे गवाही दे रहे हैं शोएब साहब, ये जरा बात सोच के करें ना सर। या तो उनका कोई हल्फिया बयान हो या उनको पार्टी बनाए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस के हवाले से समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो कि केस की समाअत कर रहा है, और मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो बिल कौमी असम्बली से पास हुआ था उसका जिक्र किया गया। इस मौके पर शोएब शाहीन की जानिब से बताया गया कि कौमी असम्बली से ये बिल पास हुआ था, जिसके बाद ये सेनेट को भेजा गया, लेकिन सेनेट में ये बिल जो है वो मिसिंग है। इस हवाले से चीफ जस्टिस का ये कहना था कि क्या बासपुर्स की गई है, क्या चेयरमैन सेनेट से पूछा गया है कि आखिर ये बिल क्यों मिसिंग है। इस मौके पर शोएब शाहीन का ये कहना था कि नहीं, चेयरमैन सेनेट से इस बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन चूँकि ये फाइल में ये रिकॉर्ड में बताया गया है कि ये बिल कौमी असम्बली से पास हो चुका था, लेकिन ये सेनेट में जाकर मिसिंग हो गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इस तरह से एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, तो चेयरमैन सेनेट को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, उनसे आखिर पूछा जाना चाहिए कि क्या वजह है कि ये बिल जिसकी जिम्मेदारी उन पर आयद होती थी, ये बिल वहाँ से मिसिंग है। इस मौके पर चीफ जस्टिस को वो बिल की कॉपी पेश की गई जो कि कौमी असम्बली से पास हुई थी मिसिंग पर्सनस के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ लोगों का जिक्र है, और इस हवाले से जो है वो दीगर जो लोग हैं उनका भी जिक्र आया, जिसमें फ़र्रुख हबीब का जिक्र किया गया, इसके अलावा आज़म खान का जिक्र किया गया, और दीगर जो लापता अफराद थे उनके हवाले से जिक्र किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि यहाँ पर हम सियासी बातें नहीं करना चाहते हैं, लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। शोएब शाहीन की जानिब से कहा गया कि एतजाज़ एहसन ने ओवरऑल सूरत हाल पर ये दरख्वास्त दी थी और वो एतजाज़ एहसन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एतजाज़ एहसन के सामने उन तमाम अफराद को उठाया गया या फिर उन अफराद ने कहा कि उन्हें जो है वो इस तरह से जबरी तौर पर उठाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तमाम लोग असर व रसूख वाले हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, और ये तमाम लोग ख़ुद कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जुल्म तो असर व रसूख वालों पर भी हो सकता है। शोएब शाहीन की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस ने मुकालमा करते हुए कहा कि यहाँ पर
ڈائلاگ بازی نہیں کریں، بلکہ یہاں پر سیاسی باتیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم اس کیس کو سیاست سے الگ رکھ کر چلنا چاہتے ہیں. آپ کی پوری درخواست ایک سیاسی جماعت کے گرد گھومتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. انہوں نے کہا کہ کیا آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک سیاسی مسئلے کو سنیں گے؟ یہاں پر ہم سیاسی باتیں کرنے کے لیے اور سیاسی باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. لاپتہ افراد کا کیس سنجیدہ نوعیت کا ہے، عدالت کا مذاق بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. انہوں نے کہا کہ انگریزی محاورہ ہے کہ اگر آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پر سیاست سے ہٹ کر بات کریں. لاپتہ افراد کا کیس سنجیدہ نوعیت کا کیس ہے، عدالت کا مذاق بنانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے سکتے. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ اہم ترین ریمارکس دیے گئے ہیں. 3 رکنی بینچ ہے جو کہ لاپتہ افراد کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کو براہ راست سن رہا ہے، جس کی سماعت براہ راست نشر بھی کی جا رہی ہے. شعیب شاہین اس وقت روسٹرم پر موجود ہیں اور ان کی جانب سے دلائل دینے کا سلسلہ جاری ہے. اس موقع پر ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک بل مسنگ پرسنز کے حوالے سے قومی اسمبلی میں لایا گیا تھا، اور وہاں سے یہ بل پاس ہونے کے بعد سینٹ کو بھیجا گیا تھا اس کی منظوری کے لیے، لیکن سینٹ سے وہ بل مسنگ ہے. اس پر چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر وہ بل کہاں گیا؟ کیا اس بارے میں چیئرمین سینٹ سے باز پرس کی گئی ہے؟ شعیب شاہین کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، چیئرمین سینٹ سے اس بارے میں نہیں پوچھا گیا ہے، چونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور وہ ریکارڈ ان کے سامنے موجود ہے کہ سینٹ میں یہ بل گم ہو گیا تھا، سینٹ سے یہ بل منظور نہیں ہو سکا تھا. اگر یہ منظور ہوتا تو یہ قانون بن چکا ہوتا، لیکن اس بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. شعیب شاہین نے بتایا کہ اس حوالے سے باز پرس جو ہے وہ صرف اس حد تک کی گئی تھی کہ یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوسرے ہاؤس سے یہ پاس نہیں ہو سکا تھا. اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ کسٹوڈین چونکہ چیئرمین سینٹ ہیں، اگر آپ ان پر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں تو کیا ان کو پارٹی بنایا ہے؟ شعیب شاہین نے کہا کہ نہیں، انہیں پارٹی نہیں بنایا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تک آپ نے صرف سیاسی باتیں کی ہیں، ہم اس حوالے سے سیاست نہیں کریں گے، بلکہ یہ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اس کو آگے لے کر چلیں گے، ہم آپ کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی اجازت نہیں دے سکتے. چیف جسٹس نے کہا کہ جب آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی بات کریں گے تو بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے. یہ سنجیدہ نوعیت کا کیس ہے، لاپتہ افراد کے مسئلے کو سیاسی نہ بنائیں، اس پر سیاست نہ کریں. اس موقع پر چیف جسٹس کو وہ کاپی پیش کی گئی اس بل کی جو کہ قومی اسمبلی سے پاس کیا گیا تھا لاپتہ افراد کے معاملے کے حوالے سے، لیکن یہ بل جو ہے سینٹ سے پاس نہیں ہو سکا تھا. چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے مکالمہ کیا. اس موقع پر شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ کمیشن کب کا ہے، تب اس میں کیوں جو ہے باقاعدہ طور پر کام شروع نہیں ہوا تھا. اس موقع پر شعیب شاہین کی جانب سے کہا گیا کہ جو بل آیا تھا وہ مسنگ ہے. سر پہلی بات تو یہ ہے، میں ایک گزارش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اپیئرنگ ایز پی ٹی آئی ورکر اور پی ٹی آئی لیڈر ان دس کیس. دوسری بات سر، اعتزاز از آلسو ناٹ اپیئرنگ ایز پولیٹیکل ورکر آف پیپلز پارٹی. ہم آئے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں. مائی لارڈ کے سامنے جو چیز جناب سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، بٹ ایز آفیسر آف دس آنریبل کورٹ جو غلط ہوا کسی کے ساتھ ہوا، جس نے کیا ان سب کو اس میں شامل کر کے اس کمیشن میں شامل کیجئے. 100% ہم اگری کرتے ہیں، مگر جب آپ صرف کیوں کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں جو ہوا ہے اس کو آپ خاموش کنڈیم کر رہا ہوں. آپ کنڈیم کرتے ہیں جب آپ کے احساس دلاتے ہیں. میں تو اس وقت پارٹی میں تھا ہی نہیں ویسے، لیکن بات یہ تھی کہ نہ گورنمنٹ نے اس وقت اٹھایا تھا نہ آج گورنمنٹ نے اٹھایا ہے لوگوں کو. جس وقت لوگوں کو اٹھایا گیا وہ بھی کچھ اور تھے، آج بھی کچھ اور ہیں. دیکھیں میں آپ نے جتنے لوگوں کے نام لکھے نا، یا تو آپ سب کے لکھ دیتے جو آپ کے پارٹی میں تھے یا نہیں تھے یا نیوٹرل تھے. جن 2 جرنلسٹ کا میں نے نام لیا وہ شاید انڈیپینڈنٹ ان کو تصور کیا جاتا ہے، جرنلسٹ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے. کم سے کم کوئی ایلیگیشن میں نے آج تک سنا نہیں ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ہوں کسی کے ایلیگیشن تو خیر ہر بندے کے خلاف لگاتا ہے، اس پہ تو نہیں جاتا، بٹ دے آر کریڈیبل جرنلسٹ. میں ان کی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے جو کہ لاپتہ افراد کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور شعیب شاہین روسٹرم پر مول کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے سنو نیوز.